the Nari Shakti Vandan Adhiniyam or the reservation of women in the parliament. But अगर 17th लोक सभा का डेटा देखा जाए तो only 14% of the members of the 17th लोक सभा were women. A lot of demand for reservation of 1/3 of the seats for women. Hello and welcome back to Prep Alpine. We are continuing with our high yield UPSC series where we discuss some of the most important and most conceptual topics which are very relevant for your upcoming UPSC prelims and mains exam. These topics will help you get an edge over the other aspirants in your upcoming exam, which is not even 90 days away. Apart from this, we also provide these high quality PDFs of well researched current affairs from monthly perspective and everyday perspective, which are available completely for free on our Telegram channel, which you can check out from the link in the description below. So today's topic is a very confusing topic, which is about the Nari Shakti Vandan Adhiniyam or the reservation of women in the parliament. It is important from GS1 perspective, the social justice perspective, the society perspective, as well as the GS2 perspective, that is the governance and the political representation perspective. So what happened that हमारे यहाँ हम जानते हैं कि 50% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है 50% लगभग हमारी पॉपुलेशन जो है वो फीमेल्स की है. बट अगर 17th लोकसभा का डेटा देखा जाए तो ओनली 14% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द 17th लोकसभा वर विमेन. So this created a lot of demand for reservation of 1/3 of the seats for women, and the government agreed to it and enacted the Constitution 106th Amendment Act of 2023, which is also known as the Women's Reservation Act or the Nari Shakti Vandan Adhiniyam. So what does this Nari Shakti Vandan Adhiniyam says? It guarantees 1/3 reservation to women, where to in Lok Sabha and in state legislative assemblies. So the first takeaway point for your prelims is that it does not guarantee reservation in the Rajya Sabha or the state legislative council. It is only applicable on the bodies where direct election is there, that is the Lok Sabha and the state legislative assemblies. बट अब इसके अराउंड कंसर्न जो ये आ रहा है कि इसको इम्प्लीमेंट, अब इसको लॉ तो जो है वो पास कर दिया गया एक्ट 2023 में ही बिल पास हो गया, ये एक्ट बन गया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कब किया जाएगा? तो द क्लॉज दैट हैज बीन एडेड फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ओनली आफ्टर द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड आफ्टर 2026 and the subsequent delimitation exercise, which is why it is very much debated right now. So now let us understand the constitutional provisions of this Nari Shakti Vandan Adhiniyam. So Article 330A says that 1/3 reservation for women in Lok Sabha, and 332A similarly guarantees it in state legislative assemblies. But 334A says that it will come into effect only after the first census conducted after 2026, that is the census which is going to be conducted right now, and the subsequent delimitation exercise. So अभी जो सेंसस हमारा चल रहा है, इसके बाद जो डेटा पब्लिश किया जाएगा which will be around 2027-28, उसके हिसाब से फिर लोकसभा जो है वो डीलिमिटेशन एक्ट पास करेगी, which is as per the provisions of Article 82 of our Constitution, and then President will constitute a delimitation commission, and this delimitation commission will then reorganize the seats on the basis of the population, the new population of 2026, और उसके बाद फाइनली जो नए नंबर ऑफ सीट्स होंगे, अगर सीट्स को इंक्रीज करते हैं तो which is a very high probability since अभी हमारे यहाँ हमारा population जो है वो काफी हद तक बढ़ गया है, तो there is no point of continuing the 1971 census right now. तो इन केस अगर नंबर ऑफ सीट्स जो है वो बढ़ती हैं, तब जाकर के ये जो 1/3 रिजर्वेशन है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा. तो ये बात है कि अगर आप इसको 2023 में इम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं और इसको अगर इसके रियल इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में और इतना ज्यादा टाइम लगेगा, और कितना टाइम लगेगा इस चीज को समझते हैं. तो अगर हम देखें तो 2023 में इस अमेंडमेंट को पास किया गया, फिर 2026 में अभी हमारा सेंसस जो है वो होगा विच विल बी अराउंड 2027 ऑल्सो. उसके बाद इसका जो डेटा पब्लिश होगा वो होते होते 2028 आ जाएगा. फिर डिलिमिटेशन एक्ट जो है वो
आर्टिकल 82 के अंडर जो है फॉर्म किया जाएगा एंड डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट नोटिफाई करेंगे। ये प्रोसेस होते होते फाइनल सीट एलोकेशन और नोटिफिकेशन जो आएगा उसमें 3-4 साल का प्रोसेस लग जाएगा। तो फाइनली हो सकता है कि 2034 जो नेक्स्ट जनरल इलेक्शन होगा आफ्टर 2029, क्योंकि ऑब्वियसली मान लिया कि अगर ये एक्सरसाइज जो है वो 2032 तक कंप्लीट भी हो जाता है तो ये बीच में आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। ये अगला जब जनरल इलेक्शन होगा, जब लोकसभा का इलेक्शन होगा, उस टाइम पे ही आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो दिस शोज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर मेंस दैट लीगल enactment is not equal to immediate enforceability, क्योंकि यहाँ पर लीगली तो हम 2023 में ही enact कर दे रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो एनफोर्स करने में इसको हमको ऑलमोस्ट एक डेकेड का जो टाइम है वो लग रहा है, विच इज वाई इट इज वेरी मच डिबेटेड बाय द पीपल कि रियल इंटेंट नहीं था, ये एक पॉपुलिस्ट मेजर था कि आपने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास कर दिया, बट रियल इंटेंट नहीं था इसको इम्प्लीमेंट करने के पीछे। इसके अलावा पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी है डिलिमिटेशन को लेकर के कि अगर पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाएगा तो हिस्टोरिकली हमने देखा है कि साउथ इंडियन स्टेट्स हैव टेकन मेजर्स टू कंट्रोल देयर पॉपुलेशन एंड नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में पॉपुलेशन का जो गेन है वो ज्यादा हुआ है। तो ये एक नॉर्थ साउथ पॉलिटिकल इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट कर देगा, बिकॉज नॉर्थ इंडियन स्टेट्स विल हैव मोर रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा दैन कंपेयर टू द साउथ इंडियन स्टेट्स। तो ऐसा कहा जा रहा है कि दिस जेंडर रिफॉर्म हैज बीन इंटरट्वाइंड विद फेडरल पॉलिटिकल कैलकुलेशंस, क्योंकि अगर नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होंगी तो उस हिसाब से फिर जो प्रेजेंट सिटिंग एमपीज हैं, एमएलएज हैं, उनको आपको हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो आने वाले सीट्स हैं उनमें आप विमेन रिजर्वेशन जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक और चीज जो हमको समझने की जरूरत है वो ये है कि ये जो 1/3 रिजर्वेशन है ये नंबर ऑफ सीट्स में मिला है, प्लस SC STs के लिए जो सीट रिजर्व्ड है उसमें भी 1/3 रिजर्वेशन जो है वो इसमें, यानी कि SC STs के लिए अगर 100 सीट रिजर्व्ड है तो उसमें भी 1/3 जो है वो विमेन को जाएगा। बट सिमिलर प्रोविजन जो है वो ओबीसी के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, जस्ट फॉर द रीजन कि ओबीसी के लिए अभी हमारे पार्लियामेंट में जो रिजर्वेशन है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो विमेन को भी वहां पर रिजर्वेशन नहीं मिला है, विच इज नोन एज द एब्सेंस ऑफ सब कोटा फॉर ओबीसी। तो लोगों का कहना है, क्रिटिक्स का कहना है कि दिस ओनली रिफ्लेक्ट्स फॉर्मल इक्वालिटी एंड नॉट सब्सटैंटिव इक्वालिटी। एंड मोर ओवर अगर आप डेमोक्रेसी में एक रिप्रेजेंटेशन को पोस्टपोन कर रहे हैं, एक सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन का, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन का, तो स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी जो कि हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है वो कहीं ना कहीं डिग्रेड होती हुई नजर आती है। एंड देन थर्ड कंसर्न है ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ अपर हाउस। व्हाई इज इट नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स? बिकॉज राज्यसभा एंड द एसएनसीज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द फेडरल एंड लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस। तो इसका जो इम्पैक्ट होगा इस रिजर्वेशन का, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का, विल नॉट हैव अ ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट। एंड इसके अलावा रोटेशन कंसर्न है कि सीट्स जो है, कौन से सीट्स रिजर्व होंगे, इसको रोटेट किया जाएगा। तो फ्रीक्वेंट रोटेशन में वीकेन लॉन्ग टर्म अकाउंटेबिलिटी। ऐसा तो नहीं होता है कि एससीज एसटीज के लिए जो सीट्स रिजर्व्ड होते हैं उनको रोटेट किया जाता है। तो व्हाई इज दिस क्लॉज विद विमेन? तो इट विल इम्पैक्ट द लॉन्ग टर्म अकाउंटेबिलिटी एंड देयर इज ऑल्सो अ कंसर्न अबाउट प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हमने लोकल लेवल पर देखा है कि जब विमेन रिजर्वेशन जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हो, पंचायत में हो, तो सरपंच पति का जो कॉन्सेप्ट है वो हम सबने देखा है। और आपने आई एम श्योर कि पंचायत वेब सीरीज जो है वो जरूर देखी होगी, जिसमें हम देखते हैं कि प्रधान जी जो है वो फीमेल होती हैं, लेकिन फिर भी सारे डिसीजंस जो है वो उनके हस्बैंड लेते हैं। तो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि व्हाई इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विमेन का रिप्रेजेंटेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो सबसे पहले तो डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी है। सोशल डाइवर्सिटी को आपका जो पार्लियामेंट है वो रिफ्लेक्ट करे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब हमारी आधी पॉपुलेशन जो है वो फीमेल्स की है, तो वी कैन नॉट जस्ट एक्सपेक्ट कि 10% 14% फीमेल्स जो है वो हमारी आधी जनता को रिप्रेजेंट कर सके। देन देयर इज आल्सो अबाउट पॉलिसी आउटकम्स की फीमेल्स विल वर्क फॉर फीमेल रिलेटेड थिंग्स, वेदर इट इज ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ, वेलफेयर। एंड वी हैव एविडेंस कि जहां जहां पर हमने फीमेल लीडर्स देखे हैं वहां पर इन सारे इंडिकेटर्स में हमको जो इंप्रूवमेंट है वो देखने को मिला है। एंड लास्टली आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द आर्टिकल 15 clause 3 of our constitution says we can make special provisions for women
women and special provisions for women is also a part of upholding justice, dignity and equality. It is a part of the right to life with right to life and personal liberty under Article 21. Therefore ये जो reservation है, ये जो historical structural imbalance जो create हुआ है, उसको करेक्ट करने के लिए लाया जा रहा है। तो अगर हम देखें कि इसको रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसके इम्प्लीमेंटेशन में इतना टाइम लगेगा, डिलेड इम्प्लीमेंटेशन को, तो सबसे पहले तो ये जो सेंसस और डिलिमिटेशन का कंडीशन है, इसको हम या तो कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं या इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज है प्रेजेंट में, ठीक है, बाद में अगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंक्रीज होंगी दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है उनमें हम ये रिजर्वेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं अभी स्टार्टिंग से ही, आने वाले 2029 के इलेक्शन से, या जो भी स्टेट्स में अभी इलेक्शन आने वाले हैं उनसे। लोकसभा की जो सीट्स हैं, इन केस वो इंक्रीज होती हैं तो जो नई सीट्स हैं उनको हम विमेन के लिए रिजर्व कर सकते हैं। जो रोटेशन से रिलेटेड रूल्स हैं उनको हम रिफाइन कर सकते हैं कि किन ग्राउंड्स पे रोटेशन होगा, सो दैट सोशल डाइवर्सिटी जो है उसका भी ध्यान रखा जाए। इसके अलावा ओबीसीज को लेकर के जो कंसर्न है उस पर भी कुछ जो सॉल्यूशंस है उसको हम प्रपोज कर सकते हैं, सो दैट कि ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। अगर देखा जाए तो वर्ल्ड ओवर ये एक बहुत बड़ा स्टेप है और ये गारंटी करता है पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड समटाइम्स ये दिखाता है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी समटाइम्स रिक्वायर्स इंस्टीट्यूशनल करेक्शन, बट टू इंश्योर कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका जो गोल है वो सही तरीके से मीट हो, इसका जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा गारंटी करता है जिन चीजों को, वो सिंबॉलिक अफर्मेशन हमको मिले, इसके लिए जो रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं वो हमको लेने होंगे, सो दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज अपहेल्ड। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू वांट मोर सच कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप वॉचिंग प्रेप अल्पाइन। थैंक यू।